You are welcome for this very important problem statement. First of all, I would like to thank your university for appointing you for the evaluation of Smart India Hackathon. You have been given this task of problem 4, that is MS334, the baggage and other accessory recognition and compilation of the database and making use of it. Here, we are not interested in accessories of each and every one. So our focus is only criminals, right? So from where you will get this data set? So there will be 3 places from where we will be capturing this database: through CCTV and IoT devices. So there will be 2 kind of the devices will be involved: CCTV and IoT devices. These CCTV and IoT devices, they will be owned by either by the government. When we say the government, it may be by the, say, smart cities, maybe the smart police, maybe owned by institutions, or maybe owned by the private individuals. In time to come, under the Triple T model, not many companies they will be coming. Lot of startup would be coming. Those they will be owning these nodes. They will be owning these devices, right? First of all, the data capturing has to be done from the criminal clusters, because you know where the criminal is residing, and that is a very rich source of data. So, and there are other problem statements. Those who are focusing on facial expression, they are focusing on apparel, what kind of the cloth they are wearing. Somebody is focusing on vehicle. So you are focusing on baggage and accessories. तो वो घड़ी कौन सी पहने हुआ है, चश्मा क्या लगा रहा है. So whatever is on his body, whether उसकी घड़ी जो है ना, उसमें रिंग्स कौन सी पहनी हुई है, इवन जो है ये जो आपका रक्षाबंधन है, ये भी जो है इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी. So all such things has to be identified, and then it has to be compiled in a database. And those things later on would be used for fixing the identity of the person. और किन चीजों, किन लोगों के बारे में फोकस रहेगा? क्रिमिनल या each and everybody whosoever is moving with the criminal. जो क्रिमिनल के साथ मूव कर रहा है, हम उसे उसका एसोसिएट कहेंगे. ठीक है ना? एसोसिएट भी 2 तरीके के होंगे. एक जिन्होंने पहले क्राइम कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी क्राइम नहीं किया, तो चूंकि क्रिमिनल के साथ घूम रहा है तो भविष्य में क्राइम करेगा. ठीक है? तो वो दोनों ही हमारे इंटरेस्ट के हिस्से हैं. अब उनके पास जो बैगेज है, अब बैगेज को फोकस करते हैं अपन. तो बैगेज में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस चीज कैसा बैगेज है, उस बैगेज की आइडेंटिटी क्या है, क्या वो किसी कंपनी का है, क्या वो किसी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो लोकल है, वो कैसा है. एक तो हो गया जनरल टाइप की इन्फॉर्मेशन. देन सेकंड जो है ना, इट विल बी कैप्चरिंग द पिकुलियरिटी व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिटी, एंड दैट विल बिकम वेरी हैंडी. ये कि यदि कोई सामान चोरी गया है और उसमें जो है ना उसका पास उसका फोटो है, आने वाले लोगों को एडवाइस करेंगे कि उनकी जितनी भी एक्सेसरीज है उसका हम अपने ही प्रावधान कर देंगे, जहाँ पे वो उसका फोटो लेके 360 डिग्री फोटो लेके रख सकते हैं. तो जब कभी उनके साथ क्राइम होगा तो दे कैन शेयर दैट डिटेल्स विद अस. नाउ वहाँ क्राइम और यहाँ हमारे क्रिमिनल के साथ बैग देखा जा रहा है, सो वी कैन इमीडिएटली फिक्स इट कि साहब ये बैग का सोर्स में भी एक क्राइम हो. तो एक तरफ हम जो है ना उसके बैगेज और एक्सेसरीज को यूज करेंगे टू हिज आइडेंटिटी. जैसे मान लो मेरे पास एक बैगेज है और हम क्राइम के समय उस बैग को साथ लेके जा रहे हैं, तो हम बैगेज के माध्यम से भी उस क्रिमिनल को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं. वो बैगेज कैसे, दिस इज आल्सो इन्फॉर्मेशन. So not only the baggage. If I just brief what I have understood from you,
is that Please. let's say on an investigation process you have a suspect, and on that suspect you found that this person is carrying a bag. Now, with you already have a lot of database of different bags and things, so by looking the picture you want to identify this, which what is this bag, which particular bag is this, which company or brand is this, so that you can now trace the history and things to find out some clues that ये कहाँ से आया है, क्या है, and all that. देखिए, अब आपने जो समझा है वो थोड़ा सा आधा समझा है, उसको मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। Okay. एक तो ये है कि हम क्रिमिनल के बारे में हर चीज का, हर एट्रीब्यूट्स का डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है ना? Okay. दैट इज Okay. शुद्ध डाटाबेस, उसका किसी क्राइम से कोई लेना देना नहीं। Okay. क्लियर? तो यदि मैं क्रिमिनल हूं तो मेरे बैग में मुझे रुचि है। यदि आप क्रिमिनल हैं तो आपके बैग में मुझे रुचि है। आप यदि क्रिमिनल हैं तो आप अंगूठी पहनते हैं तो इसमें मुझे रुचि है। यदि आप Okay. घड़ी पहनते हैं तो आपकी घड़ी में मुझे रुचि है। अभी कोई Okay. क्राइम नहीं हुआ, I got it. राइट? अब हम इसको जो जिसमें मुझे रुचि है, हम उसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहते हैं हाउ यू आर यूजिंग दिस। नंबर 1, यू आर पजेसिंग इट, राइट? पजेसिंग के बाद आप जा रहे हैं हाउ यू आर यूजिंग इट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, टाइम ऑफ यूज, स्टाइल ऑफ यूज। Okay. देन इट विल आइडेंटिफाई कि जब वो क्राइम करने जाता है, जब हम उसको क्राइम से मैप करेंगे और हम उसके बैकवर्ड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम ये कह पाएंगे ऐसा जाता है तो किस तरीके की चीज में लेके जाता है, ऐसे लटकाता है, ये करता है, वैसा करता है। Okay. नॉर्मल कोर्स में बैग लेके नहीं जाता है, लेकिन जब क्राइम करने जाता है तो एक बैग ले जाता है क्योंकि उसके अंदर उसके कपड़े रखे होते हैं। Okay. राइट? तो अब हमको ये मालूम पड़ा कि यदि इसने बैग पीछे लिए हुए है, इसका मतलब है ये क्राइम करने जा रहा है। हम इसको प्रिवेंटिवली यूज कर सकते हैं, राइट? अब जो है, अब वो गया, उसमें कपड़े रखे हुए हैं, उसने क्राइम कमिट किया, लौट के आया तो उसके कपड़े बदल गए। तो बैग तो है लेकिन कपड़े दूसरे पहने हुए हैं। अब अज्यूम करो कि हमको जो है कोई एफआईआर नहीं मिली या पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है, लेकिन हमको इनडायरेक्टली मालूम कि ये गैंग ये गया है, इसने कोई ना कोई क्राइम जरूर किया है, तो सिस्टम विल आइडेंटिफाई हे दिस पर्सन हैज कमिटेड सम क्राइम, हैज बिकम ए क्रिमिनल इंटेलिजेंस। इट इज नॉट ए इन्वेस्टिगेशन लीड, इट इज ए क्रिमिनल इंटेलिजेंस। तो हम जो जैसे ही हमें कहीं क्राइम की जानकारी मिलेगी, खट से हम कहेंगे कि दिस में बी कमिटेड बाय हिम, उसके फोटोग्राफ, ये वो ढेर सारी चीजें हम उसको परोस सकते हैं वहाँ विक्टिम को और आसपास के विटनेस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि क्या ऐसा था, क्या उसका बैग ऐसा दिखता था, क्या ये पीछे ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था। तो हम जो है ना इतनी सारी जो है ना इनपुट दे पाएंगे कि डिटेक्शन विल बिकम ए सर्टेन। इसमें सर मैं जस्ट छोटा सा इंटरप्ट करूंगा। It's like, but for this you need the lot of database for that particular criminal before he is committing any crime. So for example हमको पहले से पता होना चाहिए कि जब काम कर रहे हैं। Just a minute. We are not very sure कि उसने है कि नहीं किया है। We are just capturing the detail. जैसे अज्यूम करिए कि वो गया खाली हाथ था, लौट के आ रहा है, एक बैग के साथ आ रहा है। नाउ सबसे पहली बात तो ये डाटाबेस में चला गया कि साहब इतने बजे ये लौटा तो इसके साथ एक बैग था। ये बैग पहले उसके पास कभी नहीं रहा। नाउ दिस हैज बिकम ए क्रिमिनल इंटेलिजेंस आल्सो। सो यदि मतलब हम डाटाबेस में उसे पहले डाल रहे हैं, क्रिमिनल इंटेलिजेंस बाद में बना रहे हैं। जब कुछ होगा ये जब गया था तो इसने ये कपड़े पहने हुए थे, अब ये लौटा तो ये कपड़े पहन के आ रहा है। गया था तो इस गाड़ी से गया था, लौटा है तो पैदल लौटा है, इसका मतलब उसने गाड़ी कहीं छोड़ दी। या गया था तो इस गाड़ी में गया था और लौटा तो दूसरी गाड़ी में आया है। Okay. Now these things first will be stored into the database and background data analytics and AI model will work to identify
कि क्या कोई क्राइम का इंडिकेशन है, तो हर नए डाटा पे वो दिमाग लगाएगा, वो एल्गोरिथम बैकएंड पे इनको जनरेट करना है कि हाउ जो है वेदर इट इंडिकेट्स सम कमीशन ऑफ क्राइम और सम इंटेलिजेंस। इसी इसी के लिए मैं कह रहा था सर कि AI, if you want to develop AI models, the AI models can be developed only based on when you already have lot of training data set. That means you already know कि ये बंदा जब जाता है और गाड़ी बदल जाती है तो क्राइम हुआ था या क्राइम नहीं हुआ था, तो बहुत सारा टैग डेटा आपके पास पहले है। देन यू विल ट्रेन दैट मॉडल। तो वो ट्रेनिंग के लिए मॉडल डाटा आप कहाँ से लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको देखिए, आइडेंटिटी और ये सब जो है ना, इट विल बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रेनिंग। बैगेज को आइडेंटिफाई करना, एक्सेसरीज को ट्रेनिंग करना, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ अब कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तो आइडेंटिफाई कर ली है चीजें, उसकी इमेज प्रोटेक्ट कर ली है, डेट एंड टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ उसको जो है ना उसने इनक्रिप्ट कर लिया है। अब कोई ट्रेनिंग डाटा नहीं चाहिए उसको। अब नाउ दिस इज ए प्योर यूज ऑफ द डाटा एनालिटिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने इसमें दिया हुआ है कि यदि जाते वक्त और आते वक्त जो है ना वो किए हैं, दिस में बी इंडिकेशन ऑफ ए क्राइम। सो इसको, यदि उसके पास क्राइम की रिपोर्ट नहीं है तो वो क्या कहेगा? क्रिमिनल इंटेलिजेंस। सो अब उसको क्रिमिनल इंटेलिजेंस वो कैसे कहेगा? आते वक्त ये था, जाते वक्त ये है, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ ए क्राइम, राइट? अब जो है नहीं है तो किसको ये इंटेलिजेंस दे? तो वो इंटेलिजेंस को डाटाबेस में पहले स्टोर कर लेगा, देन ही विल लुक कि किसी को देना है या नहीं देना, राइट? मतलब देयर कुड बी टू वे ऑफ डूइंग इट। एक तरीका ये हो सकता है कि वो उसको डाटाबेस में स्टोर करे और जब कोई क्राइम आए तो वो उस इंटेलिजेंस को उठा के उससे मैप करके कहे कि हाँ, दिस इज द इंटेलिजेंस ऑलरेडी अवेलेबल विद मी, राइट? नंबर वन। दूसरा वो ये कह सकता है प्रोएक्टिवली पुलिस वाले से, जाओ उसको पकड़ो और उसको इंटरोगेट करो कि उसने कौन सा क्राइम किया। नाउ दैट कुड बी ए फर्दर स्मार्टर वे ऑफ डूइंग। So मतलब अगर हमारे पास कोई एफआईआर नहीं है, नाउ वी आर हैविंग क्रिमिनल इंटेलिजेंस, सो हमारे पास जाके क्रिमिनल से पकड़ते हैं और उससे को कन्फ्रंट करते हैं कि ये कैसे किया, क्या किया तुमने। So if we say in a very simple words means कि हमको बंदे की हरकतें ऐसी लग रही हैं कि यहाँ कुछ क्राइम हुआ होगा। हम उसमें क्या कर सकते हैं? जो 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 लर्निंग के तहत आप ट्रेनिंग डाटा की बात कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीप लर्निंग के लिए हमें जो बैगेज आइडेंटिफिकेशन, पिक्युलियरिटी आइडेंटिफिकेशन, इस सब के लिए हमें डाटा चाहिए होगा। वो डाटा सप्लाई कर दिया उसको, राइट? उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया चीजें, राइट? अब वो जाके डाटाबेस में बैठ गई है। अब जो है आपको कोई ट्रेनिंग डाटा नहीं देना है, उस डाटा को एनालाइज करके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना है। सो इट इज मोर ऑफ ए डाटा माइनिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। It has nothing to do with the identification, because identification is a process which has been done, and based on the data, making models for identification is already there. It is done. So if you give me a baggage ID, it can be told that this is brand, this particular bag is this particular facility we have. Right. So वो जो है आपने बैगेज की आईडी, बैगेज का जो भी आइडेंटिफिकेशन मॉडल जो भी करना है वो आपने बैकएंड में कर लिया, राइट? इवन यू कैन गो एंड आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आल्सो। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट विल गिव द आइडिया कि इस क्रिमिनल ने कितना बड़ा हाथ मारा होगा तब इतनी बड़ी चीज खरीदी, राइट? यदि मान लो उसके पास एक सोने का हार है, आ गई मोटी वाली सी जैसे जो क्रिमिनल पहनते हैं, सो देन इट कैन असेस कि इसकी टेंटेटिव वैल्यू क्या हो सकती है। दैट विल गिव द इंडिकेशन कि इसने कितना बड़ा क्राइम किया है। आर यू गेटिंग मी? यस। तो ये चीज जो है, नाउ वी हैव टू से, नाउ इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। हमारे पास 3 सोर्स होंगे डाटा आने के।
एक है सोर्स क्रिमिनल, दूसरा सोर्स बीच में है उनसे, और तीसरा सोर्स है हॉटस्पॉट के आसपास। क्रिमिनल को आप घर जाना है तो वहां पे जो चीज कैप्चर हो रही वो आपके पास आ रही है। क्रिमिनल रास्ते से जाना ही जाना है तो बीच की नोट्स जो कैप्चर कर पा रही हैं वो आपके पास अपने पास आ गया। देन तीसरा जो है ना, उसको क्राइम करने जाना है तो क्राइम वो हॉटस्पॉट के आसपास जाके करेगा, तो वहां पे भी जो आपके कैप्चरिंग नोड है वहां से आपके पास डाटा आ गया। आज जितना आपके पास कैप्चरिंग नोड है वो आगे चल के और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमारा कैप्चरिंग नोड का जो डेंसिटी और इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है ना? अब हमारे So पास prime, दूसरे मॉडल prime से source of input feed is CCTV cameras. पार्डन मी, The prime source of input is CCTV cameras installed across roads, across hotspot and everywhere. अब उसको आप सीसीटीवी कहेंगे, आई विल से सीसीटीवी कम आईओटी डिवाइसेस, हालांकि इट्स वन एंड द सेम थिंग। Yeah, that is okay. It's one and the same thing. But It is what other basically kind of IoT device like IR camera or anything else you? we are capturing that hardware भी इसमें बन रहा है। वो एक आधा IoT device, ड्रोन with IoTs और नेम बोर्ड टाइप के IoT devices is a part of this competition also. Smart India Hackathon में भी बनाया है बच्चों ने। Oh, So that is to they camouflage, like looking like it will be but it is camouflage. capturing the. देखिए आगे चल के हम जो है ना इनके गुमटियों को बनाएंगे, हमारे स्टार्टअप इनकी गुमटियां बनाएंगे, तो उसमें रेडीमेड जो है ना IoT डिवाइसेस फिटेड होंगे। वैसे बहुत सारा फंडे उसमें डालेंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो IoT डिवाइसेस वहां पे फिटेड होंगे तो वो वेल फ्रेम्ड होंगे और उसको चूंकि रेवेन्यू मिलना है, जो भी उसे ऑन करेगा उसे रेवेन्यू मिल रहा है। So everybody would be interested to own it. Incentivization model for. Yeah. So there's a incentivization model is there. ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में खड़ा है, somebody will be owning it. और जो ऑन करेगा उसे उसको रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल रहा है। So basically चाहे वो क्रिमिनल क्लस्टर के पास हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो हॉटस्पॉट पे हो, उसको डाटा इनपुट मिल रहा है और उसको जैसे ही वो क्रिमिनल से एसोसिएट कर ले रहा है तो उस क्रिमिनल के साथ जो है उसको डाटाबेस में स्टोर कर रहा है, और डाटाबेस में जो स्टोर कर रहा है इट इज स्टोरिंग विद द डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टेप, एंड उसको वो इनक्रिप्ट भी कर रहा है जिससे कि उसको एज ए एविडेंस यूज कर रहा है। राइट, नंबर वन। देन चूंकि डेट, टाइम और लोकेशन मिल रही है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब बैगेज आइडेंटिटी तो जब हमको यूज करना हो तब करेंगे। नाउ वी कैन यूज इट फॉर डूइंग एन नंबर ऑफ इन्फ्रेंसेस। हम अब बैगेज का यूज नहीं कर रहे हैं, हम डेट, टाइम और लोकेशन का यूज कर, देन वी विल ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस। राइट, उससे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में इन्फ्रेंसेस करेंगे, वो नई चीज है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज द न्यू एक्विजिशन। सो चूंकि हम फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो पहली बार यदि वो पकड़ में आया है तो वी विल से दिस इज न्यू एक्विजिशन। उसे जरूरत नहीं इस बात की, उसको तो पहली बार तो हर चीज उसके लिए नई है, सो यू विल से इट्स अ न्यू एक्विजिशन। राइट, धीरे धीरे जो है ना न्यू एक्विजिशन विल आल्सो कन्वर्टेड इनटू द क्रिमिनल इंटेलिजेंस। राइट, तो उसको हाउ वी आर यूजिंग AI एंड डाटा एनालिटिक्स टू कन्वर्ट इनटू थ्री थिंग्स। नंबर वन, क्या जो चीज है वो एविडेंस वैल्यू रख रही है, इन्वेस्टिगेशन लीड में कन्वर्ट करेगा, और यदि जो है क्राइम नहीं हुआ है या हमें क्राइम होने के बारे में जानकारी नहीं मिली है तो उसको वो क्रिमिनल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करेगा। और क्रिमिनल इंटेलिजेंस को वो दो पार्ट में करेगा, ईदर इट विल जस्ट होल्ड इट एंड विद द पेशेंस जो ना विल लुक फॉर कि क्राइम के बारे में जानकारी आने देते हैं तब हम रिएक्ट करेंगे, और देन वी और एल्स वी कैन गिव द मॉडल्स कि वो कब डिसीजन करे, क्योंकि सब डिसीजन आदमी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, सब डिसीजन एल्गोरिथम ले रही है। तो बैकएंड इंटेलिजेंस डिसाइड करेगी कि उसको पुलिस को या वॉलंटियर को वेरिफिकेशन देना है, बिकॉज दैट इज द क्रिमिनल इंटेलिजेंस।
कि हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि पकड़े तो वो सीधे जो है ना पुलिस को दे देगा, यदि वो वेरिफिकेशन के मोड में आता है तो वो वॉलंटियर को दे सकता है। रोड पे वॉलेंटियर पड़े हुए रह मीन्स? रहे हो, आम आदमी, ओके, 130 करोड़ पर्सन, ओके। और जो भी जो काम करेगा उसके लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम जरूर मिलेगा। ये थैंक यू सेवा के लिए कुछ नहीं है उसमें, नो थैंक यू सेवा, नो नेशनलिज्म सेवा। So if I summarize, या let's say we have put a person under monitoring, because anyhow we cannot do this for 130 crore people, so ultimately some person should be put on monitoring mode. And once the person is on monitoring mode, all of his activities, where he is going and all that, will be captured through various places and by different IoT and CCTV cameras. Then the background intelligence, the data analytics and all, will give you the alarms and the things intelligence that probably there is a possibility of the crime has already happened or it is going to happen, and depending upon the severity of the problem or the crime, it will inform either the volunteers or the police directly, and then they will take their appropriate actions. 200%। अब इसमें केवल मुझे इतना ही ब्रीफ करना और बाकी है कि दिस विल बी डेवलप्ड एज ए माइक्रो सर्विस। इट कैन सिट ऑन एनी काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, it may sit on the front end, it may sit at the back end, it might sit in the computing platform, computing cloud also, or cloud platform, cloud computing platform. And we would like कि हमारा फ्रंट एंड जो है ना थिन रहे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो जो है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की एंड पे बैठे। दैट विल बी अवर अटेम्प्ट, बट द माइक्रो सर्विस शुड बी जो है ना हैविंग ऑल काइंड ऑफ द न्यूट्रलिटी। It can be used the way we want to use it. That's why हम इसको backend service या micro service कह रहे हैं. So it will be developed as micro service which can be used platform as we design. और उसका जो है deployability जो है ना should be automatic. मतलब Won't the platform independent? उसकी Won't the deployability जो platform है independent service? उसकी Sorry to interrupt you. उसकी deployability जो का जो end है उसका जो है ना एक लेमैन टाइप का जो है ना फ्रंट एंड होगा जो डिप्लॉयबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा। उसके लिए कोई बहुत एडवांस प्रोग्रामर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सो दैट आपके प्रोग्राम को समझने की हमें जरूरत नहीं है, हम आपके प्रोग्राम को एज ए टूल यूज करेंगे। Yeah. So now coming to the crucial question, that what these students are supposed to design these schemes, and what kind of data and things they have already been provided to make this work. What we are expecting from them. I have not given them much data set because data set compilation by itself is a problem because it's distributed. कुछ पुलिस वालों ने कहीं पे कुछ वीडियोस लिए हैं, कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं, सिंस अभी कैप्चरिंग की कोई बहुत अच्छी मैकेनिज्म है ही नहीं, पुलिस इज नॉट फंक्शनिंग दैट वे, सो रेडीमेड डाटा सेट इज नॉट अवेलेबल। यदि हम जनरल टाइप के जो है जो सीसीटीवीज हैं, यदि हम उससे कोई डाटा सेट निकालना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी कंफ्यूज काइंड ऑफ द डाटा इनपुट। कोई बहुत प्रिसाइज डाटा इनपुट नहीं रहेगा, उससे कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग संभव नहीं होगी। तो हमने उनसे कहा कि इसके लिए बहुत सारे जो है इवेंट्स की है उस रिपोर्टिंग से कैप्चर करो जहां संभव है, करेक्ट, और बाकी कुछ मूवीज से ले लो, इसको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज से ले लो, कुछ सीरियल से ले लो, ओके, बिकॉज आई फील के दैट विल बी ए गुड मिमिक्री। और आपका जो है ना थोड़ा सा ट्रेनिंग हो गया है, फिर अपन जो है ना कोशिश करेंगे कि अक्रॉस द इंडिया पुलिस से कहेंगे कि आप अपने जो डाटा सेट भेजो and then we will retrain our model. So retraining will not be an issue. यदि basic capability है तो retraining will not be an issue. Rather जो है ना we will be having more advanced kind of thing, and then जो है our model will be getting retraining जब हमारे इतने सारे डिवाइसेस फिट हो जाएंगे और इसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेगा तो हमारे पास बहुत सारा इनपुट होगा।
हमारा ही इनपुट जो है ना देन विल बी यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आवर एल्गोरिथम। तो हमारी एल्गोरिथम जो है इट विल नॉट स्टे व्हाट इट इज इन द बिगिनिंग, इट विल बी रिट्रेन्ड आफ्टर जो है ना व्हाटएवर वी विल बी डिसाइडिंग। ऐसा हमारे पास इतना डाटा एडिशनल आ गया है तो हम उसको 80 और 20% में बांट करके वी विल रिट्रेन एंड देन आवर सिस्टम जो है ना विल कैलकुलेट कि इसकी इफिशिएंसी क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, एरर लेवल क्या है, वो भी कैलकुलेट करके वो कहे हे आई एम ऑपरेटिंग नाउ एट दिस लेवल। यदि मान लो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, पर्टिकुलर फीचर जो है थोड़ा सा लो लेवल पे भी परफॉर्म कर रहा है, सो व्हेन वी विल बी वर्किंग ऑन n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो उसकी जो टोटल रिलायबिलिटी है इट विल बी मोर देन 100%। डॉक्टर भाटिया सर दो चीजें हैं। आई मीन्स मे बी एट द हैकाथन लेवल this could be okay just for the student to design, but the if we talk about the reality, the quality of the data set is very important to basically give any kind of decision for this prediction model. So in future you have to think about it. I agree with you, but एक साथ नहीं आएंगे, मुर्गी और अंडा हैज टू बी क्रिएटेड इन दिस। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज जस्ट एक बार अपना आप तो डाटा कैप्चरिंग होगी तो हम अपने ट्रेनिंग के वी विल बी रीट्रेनिंग मॉडल से फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड कर लेंगे, डाटा के बाद हम फिर से रिट्रेन करेंगे, 2 महीने के डाटा के बाद फिर से रिट्रेन करेंगे समथिंग। और ये जहां तक आइडेंटिफिकेशन वाला मॉडल है जो कि क्रिमिनल क्लस्टर लेवल पे कर रहा है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। फैब्रिक को पहचानना है, इट इज नॉट ए इशू। आपको बैगेज को पहचानना है, इट इज नॉट ए इशू। आपको जो है व्हीकल को पहचानना है, इट इज नॉट ए इशू। बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी क्रिमिनल की आइडेंटिफाई करना है, दैट इज नॉट ए इशू। आपका इशू होगा जब आप गेस्चर की बात करेंगे, इशू होगा जब आप एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो हम एक्सप्रेशन पहले जनरल टाइप के लेंगे, फिर पिकुलियर क्रिमिनल्स टाइप के लेंगे। So sir, I think let's come to the very specific output that the students are supposed to show us. Okay, so let's say they have taken the movies and different cartoons here and there, the scenarios from there. So data set they have taken it from there, and then now they have built up the models to identify that which brand of bag is this and this, or are they building the model for this, or they will not build the model for this? They will build a model. They have to do everything. Yeah. They have to do for the capturing. They have to do for database. तो जैसे मान लो उन्होंने ट्रेन करके मॉडल ला दिया, अब उसको सोर्स से मिलेगा तो उसको आइडेंटिफाई करके और उसको क्रिमिनल से एसोसिएट करके डाटाबेस में जाके ले जाएगा उसको। Yeah. तो ये कार है और किस मॉडल की है ये तो क्या है सर, as an evaluator our problem would be that how I will validate, क्योंकि एक्चुअली मेरे अंडर में भी 10 15 20 लड़के बच्चे हम लोग के अंदर में यही सब इस तरह के काम करते रहते हैं। सो हाउ आई विल इवेलुएट दैट ये बोल रहा है कि 87% और 93% एक्यूरेसी आई, हाउ आई विल वैलिडेट? अब क्या मैं जाके उनकी वीडियो देखूं, उनके डेटा? नहीं, अब उसका जो है ना तरीका ये होता है कि आप जो है ना कहीं से भी लाइव फीड ले लीजिए, लाइव फीड से जो है ना वो प्रेडिक्ट करके बताए, ऐसे सिंपल है। किसी भी जो है ना सीसीटीवी की लाइव फीड ले लीजिए, तो जिस सेंटर पे वो काम चल रहा है या कहीं कर रहा है वो लाइव फीड को समय ले और एनालाइज करके बता दे, बात खत्म हो गई। हाँ, तो सपोज एक लाइव फीड लेके वो अगर ये बता रहा है कि इसने ये कलर की जीन्स पहन रखी है, इसने ये ब्रांड की वो वॉच पहन रखी है, और देर से जब ये गया था तो इसके हाथ में कुछ नहीं था, जब ये लौटा था तो इसके हाथ में बैग था, और नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्ट गॉट इट। आपको क्या उनको एडवाइस करना है कि आप एक लाइव फीड लीजिए और एक आप जो है ना सिचुएशन पहले से लिख लीजिए और उस सिचुएशन को जो है ना वहां पे क्रिएट करें और कैप्चर करके बताएं। हाँ, सो वो उनके लिए सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उनको जो है अपना एट्रीब्यूट कैप्चर करना पड़ेगा, उसको डेटाबेस में ले जाना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उससे क्रिमिनल इंटेलिजेंस जो भी करना है वो उस समय जो है ना वो करके बता पाएंगे।
एंड दैट इज वेरी इजी। जो आप लॉजिक दे रहे हो वो तो क्योंकि उसने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है, तो उसको बिल्ड करके जो है वो इस तरीके से बताएगा, और कोई भी सीसीटीवी से मेरे वो उसी हिसाब समय से उसको मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट को चैलेंज फेस होगा वो probably he can use ready-made models to detect various objects, तो उसके लिए तो वो रेडीमेड मॉडल यूज कर सकता है जो पहले से ट्रेंड है, but to make a relationship between the possibility of crime and his activities, the set of activities, वो कैसे ट्रेन करेगा? वो उसके पास बहुत सारा डेटा पहले से होना चाहिए। नहीं, उसको ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है, उसको ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो सिंपल सी बात ये है कि आपने जो है पहले तो सिर्फ कैप्चरिंग वाली बात आपको प्रूव करना है कि योर सिस्टम इज इन पोजीशन टू कैप्चर, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन का उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग उसके पास है, ठीक है ना। अब उसने एक मिमिक्री लाइव डाटा को जो है ना लिया, एंड लेट्स प्रिज्यूम कि एक बंदा जा रहा है और फिर लौट के आ रहा है, उसके कपड़े बदल गए हैं, तो एक आप जो है ना उनको एक स्क्रिप्ट टाइप की लिख दीजिए 2 3 4 6 की, जो अपनी चर्चा के हिसाब से यू कैन नाउ इमेजिन एन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट, एंड यू कैन से कि साहब इसको डिबेट करिए और इसको प्रूव करके दिखाइए। क्लियर? सो मतलब अगर वो इतना भी बता दे कि ये इस सीक्वेंस में ये गया, इसके हाथ में ये था, इसकी चेंज हो गए थे कपड़े, और ये बस वो अगर ये सब बता दे, सो दैट इज सफिशिएंट। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक तरह का क्राइम करके आया, ये नहीं, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता नहीं वो नहीं बता। नहीं 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 नहीं, वो तो जो है ना डाटा एनालिटिक्स जो है ना बाद में अपन जो है ना उसको बिल्कुल उसमें ठीक वो है, यूज ठीक करके है, निकालेंगे, उसका बिकॉज नहीं है। अच्छा अच्छा, दूसरी दूसरी बात है कि चूंकि उसको मालूम है यदि वो कुछ बता पाता है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ना। फाइन फाइन, दैट वी यदि विल सी। यदि उसने, हमने उसको ये कहा है कि आप जो है ना मॉक करिए और कैप्चर करिए, तो आप कितना मॉक कर पाया है कितना नहीं कर पाया है, यदि उसने कुछ ऐसे लॉजिक यदि डेवलप कर लिए हैं तो ही विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। विनर तो सो वही बनेगा ना। विल वी गिव इनपुट स्ट्रीम की, इसको वीडियो को लो और इसमें बताओ, और तुम अपने मन से कोई भी वीडियो लो और तुम बताओ। बेसिकली व्हाट वी कैन से, हम सिनेरियो कुछ कुछ क्रिएट कर लें, एंड देन वी कैन से कि साहब आप इसको जो है ना इस सिनेरियो के तहत आप इसको कैप्चर करके मुझे बताइए। ओके, इन इस सिनेरियो पे किसी एक मूवी एक से तो या कहीं एक से तो भी अप, कैप्चर एक तो करो। अपन क्या कर सकते हैं उसमें कि जो कहीं भी जो फीड है, जनरल फीड है, उस फीड हम्म को ही जो है ना यूज करके हम उसको वो करा सकते हैं। ओके। जैसे जूम करिए कि मान लो जो है ना उसके अपने कॉलेज का जो है सीसीटीवी है या अपने मोहल्ले का सीसीटीवी है, और वहां से जो लोग नॉर्मल कोर्स से निकल रहे हैं उसी डाटा फीड को वो यूज करके इट इज सेग्रीगेटिंग एंड शोइंग। भाई जो उसका अपना मोहल्ला है वो ही उसको मान ले कि साबित है क्रिमिनल क्लस्टर, भाई वो अभी एक तरह से मान ले कि जितने भी लोग वहां से निकल रहे हैं वो सभी क्रिमिनल हैं, राइट। क्लियर? नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अब उसका काम क्या है कि जो लोग निकल रहे हैं इसका डाटा आपको अपने सिस्टम में कलेक्ट करना है, तो वो डाटा कैप्चर करे, आइडेंटिफाई करे और सिस्टम में कैप्चर पर सर इसमें एक इशू है, जैसा मैंने आपके डॉक्यूमेंट में देखा है, द फाइनल इज फ्रॉम 1 to 3rd, करेक्ट? या एंड नाउ ऑन द डे 1 ही विल बी मेंटर्ड कि भाई तुमको ऐसे ऐसे करना है। बेसिकली ही आई हैव टेकन देयर मेनी सेशंस, तो हाँ, उनको so उनको काफी थोड़ी कुछ आइडिया। हाँ, ओके। आई हैव टेकन मेनी सेशंस। अभी कुछ दिन पहले हमने उनका डाउट रेजोल्यूशन सेशन लिया था, ओके, हमने जो है ना उनका 3 दिन लंबा जो है ना ब्रीफिंग सेशन लिया हुआ है। फाइन, देन दे मस्ट बी नोइंग। सो बेसिकली देन जो है ना, बेसिकली देखिए मेरा ये कहने का मतलब उन्होंने जितना जनरेट कर लिया है इसके बाद वो 6 महीने इस पे और काम करेंगे टू फर्दर मॉडिफाई इट, तो देयर विल बी इनफ टाइम। भाई उनमें से एक को तो विनर डिक्लेयर करना ही है ना अपने को। यस सर, कुछ ने किसी ने कुछ तो अच्छा काम किया ही। और दूसरी बात है कि उसने तो क्रिएटिविटी की है, इसे न्यू एंड इमर्जिंग एरिया, हम भी नई चीज सोच रहे हैं, नई चीज कर रहे हैं, अभी तक तो किसी ने नहीं सोचा ना इस तरीके से। मैं एक छोटा सा सिनेरियो सजेस्ट करूं सर? बताइए।
इसमें यूजुअली मूवीज में और सब में दिखाते हैं कि एक अपार्टमेंट में बंदा एक लिफ्ट से जा रहा है, लिफ्ट में यूजुअली होती है, लिफ्ट से जा रहा है और फिर वापस थोड़ी देर में आ रहा है। तो मे बी if we can take a scenario of going inside the lift and then coming out of the lift, the duration, what you can say, clothes wearing and ऐसा कुछ। उसको जो भी लाइव फीड जहां से मिल जाए, मेरा ये हाँ। कहने का मतलब है कि उसको अपने मोहल्ले की लाइव फीड मिल रही है तो उसको यूज कर ले, अपने हम्म कॉलेज की लाइव फीड मिल रही तो उसको यूज कर ले, वट एवर द हम्म सिस्टम इज एक्सेसिबल। भाई उसको कुछ यही तो प्रिज्यूम करना है कि वो सभी क्रिमिनल्स हैं, हम्म राइट। नाउ अभी आपने एक सिंप्लिसिटी कर दी है कि जो भी व्यक्ति जा रहा है ये क्रिमिनल क्लस्टर है, एक मिनट मान लिया आपने, यूनिवर्सिटी में सभी क्रिमिनल ही रह रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका हर टारगेट जो है ना वहां से मूव कर रहा है, जो एट्रीब्यूट आपको कैप्चर करना है उसको निकाल के आप बताइए कि साहब ये है, और उस व्यक्ति के साथ उसको डाटाबेस में जोड़ते जाइए, फिनिश्ड। नाउ यही काम जो पर्टिकुलर ए के लिए करेगा, बी के लिए करेगा, सी करेगा। अभी हम शरीफ आदमी को भी कुछ देर के लिए क्रिमिनल मान रहे हैं। अभी अपन पूरे डाटा सेट जितने भी लोग हैं सभी को क्रिमिनल मान के, इज इट ए परफॉर्मिंग दैट जॉब, दैट विल बी वेरी इजी। हमें एक्सप्रेशन वगैरह वाले कोर्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, बट लेट्स सी, दिस इज अ न्यू एरिया आल्सो। हम जितना भी कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। एक्सप्रेशंस के लिए हमने इसलिए मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज और स्पेशली इंग्लिश मूवीज, ढेर सारे थ्रिलिंग मूवीज, वहां से हमको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। हाँ, so anyhow अभी I just अभी have अभी अभी my जो है हमारे पास, जस्ट अभी हमारे पास डाटा कैप्चरिंग और उसकी इंटेंसिटी ही नहीं है। I got अभी it, हम sir. जो है, हाँ अभी हम उसको बहुत अच्छे ढंग से कर ही नहीं रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत डाटा है और जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग है, दैट इज मोर ऑफ ए लाइव, दैट इज नॉट ए क्राइम सीन रिलेटेड रिकॉर्डिंग। क्योंकि पुलिस के वीडियो वाले लेके और ये वो तो जनरली वो कैप्चर करते हैं जहाँ पे लाइन ऑर्डर होता है, जुलूस निकल रहा है, फलाना निकल रहा है, ये उसकी कैप्चरिंग आपको मिल जाएगी। बट क्राइम स्पेसिफिक सोच नहीं है, लेकिन वो बहुत आसान भी है। क्राइम आप क्या कह रहे हो कि नॉर्मली वो आ रहा है, नॉर्मली जा रहा है, तो जो हो रहा है उसको कैप्चर कर लीजिए। आपको सिर्फ नहीं तो प्रिज्यूम करना है मिस्टर आशीष भाटिया इज ए क्रिमिनल, राइट। अब आशीष भाटिया को जो सीसीटीवी कैप्चर कर रहा है, वो आशीष भाटिया को कैप्चर मान के उनके सभी एट्रीब्यूट्स को कैप्चर करके दिखाए, क्लियर। एंड देन जो है ना उसको डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के साथ कर दिया है, तो नाउ दिस इज हो गया कैप्चरिंग पार्ट। अब जिसको भी वो कैप्चर कर रहा है एक सिनारियो देके उसी कैरेक्टर को डिफरेंटली मूव करा दीजिए। तो जैसे जो करिए उसमें अपने कपड़े बदले, तो इस फीचर को हाउ द डाटा सेट इज डिटेक्टिंग एंड कन्वेइंग एज इंटेलिजेंस, तो ये भी बहुत आसान है। मतलब इसके लिए कोई रियल क्रिमिनल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो है ना थोड़ी सी मॉक एक्सरसाइज करना पड़ेगी। अब उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ वी वुड बी इन पोजीशन टू डू दैट मॉक एक्सरसाइज काइंड ऑफ द थिंग। So sir, if बट गिवन सिनेरियो में, अच्छा उसमें आप एक काम और कर सकते हैं। हम अजय सिंह मारवा जी को कहते हैं कि जो सेंटर वाले हैं या जो भी हैं वो क्या उनको मदद कर सकते हैं। जैसे जूम करिए जहाँ जी सेंटर है वहाँ सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, सो व्हाट वी कैन से कि द लाइव फीड कुड बी मेड अवेलेबल। Sir, we are running out of time. नो इशू। सो और कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर अपन इस ब्रीफिंग को यहाँ पे खत्म करते हैं। तब तक आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए और डॉक्टर सुनील को बताइए कि वो इनको इसको देख लें और वो भी उसी तरीके से थोड़ी सी तैयारी कर लें। वो यू कैन हैव ए डिस्कशन विद हिम एंड देन उस डिस्कशन के बाद जो है, because he is not from my institute and I don't have any idea. आप तो मेरी अथॉरिटी का यूज करके बात करिए ना उनसे। Okay, fine. So I will just ask. You are not talking as a Astos Bhatia to him. You are talking as a representative of the Mathli DGP Mathli Saran Group. Fine, sir. I will try to reach him. Yeah. Okay. और जो भी है आप उससे शेयर कर लीजिए, उसी ग्रुप पे भी दे दीजिए और उसी ग्रुप पे देते रहोगे तो हमको मालूम पड़ता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
and if required then we will have a second round. अभी तो अपने पास समय है, 2-4 दिन का समय तो है ही ना. हाँ, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है. It's only 3-4 days. मेरा ये कहना है कि evaluator should also do necessary preparation. Yes, certainly. तो आपका जो है ना, आप आपस में डिस्कशन करके then we can have a second round of discussion also कि साहब हमने ये तैयारी करने की सोचा हुआ है. ठीक है ना. If required then जो है I will ask के जहाँ पे आपका प्रॉब्लम होस्ट हो रहा होगा वहाँ के सेंटर से आपको क्या मदद मिल सकती है. Okay. So I will ask that HRD डिपार्टमेंट कि उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आपसे शेयर किए जाए एंड देन दे कैन प्ले इंटर रोल. या जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों की आपस में गूगल मीट करा देंगे. ठीक है ना. So या that is जरूरत होगी तो हमारा सिस्टम जो है ना मीट करा देगा जिससे हम भी उसे देख पाएंगे. हम उसको the YouTube Google पे Meet अपलोड भी is कर देंगे. what I was saying that if Mr. Ashirth, if he can just coordinate to make a meeting, then we will just have a meeting. But I will say you देखिए he will be a little junior person to do that. You do that and put it on this and Ashirth will be arranging that video meeting. Okay, sir. So I will have a Google Meet with him and brief it to. You can yeah. If required हम आपके streaming का session ही arrange करा देंगे. Not worry about it. Okay. Because advantage ये रहेगा कि I want कि जो हम चर्चा कर रहे हैं ये स्टूडेंट भी देखें. तो हमने HRD को ऑलरेडी कहा है कि उनको बताएं कि वो या तो लाइव देख लें या बाद में जो चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो उसको देख पाएंगे. बिकॉज हमारी इस चर्चा से दे विल आल्सो बी बेनिफिटेड. करेक्ट. उनको अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा. तो हम जो भी चर्चा करें rather than making in a house चर्चा, let it be a open चर्चा. एक तो ये है कि भविष्य में जो मॉड्यूल और जो इसको डेवलप करेंगे उनके लिए एक रेडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा. ये नंबर 1. नंबर 2 हमने ऐसा ब्रीफ किया था ये भी एक रिकॉर्ड में आ जाएगा. तो हमारी एनर्जी भी बचेगी. नंबर 1. नंबर 2 जो हम सप्लीमेंट्री डिस्कशन करेंगे जो हमारे कंसर्न्स रहेंगे they will also become that briefing point for the teams which will be developing modules. तो ये बहुत जरूरी है कि वो चीज को ठीक ढंग से समझे, ठीक ढंग से करें. मेरे ख्याल से भाटी साहब ऐसा करते हैं, इसको क्लोज करते हैं बिकॉज आई एम बीइंग रिमाइंडेड कि साहब डिले हो रहा है. अभी एक टीम और रह गई है. अब मैं उसमें गैप दूंगा नहीं तो मैं उसे फिर कल के लिए शेड्यूल करने की बात सोचता हूँ. फाइन सर. Thank you for giving your time and briefing. आप होमवर्क कर लीजिए. अदरवाइज हम लोग जो है ना we will have a supplementary second जो है ना मीटिंग also. That is not a issue. Okay. Sir, the other group is waiting, sir. Okay, sir. Okay, no issue. No issue. I think now let's close this meeting. Yeah. Thank you very much, sir.